Hello guys, welcome back to my channel Teach You Too Easy. So in today's class, we are going to discuss about quick ratio and acid test ratio. So before we start, like, share, subscribe and forward to as many as student possible so that everybody is benefited. So before we start with this particular problem, I will just brief you about this. So we have chapter 8, chapter 10, that is ratio analysis. Under that we have four types of ratios. First ratio is liquidity ratio, then solvency ratio. Type 3 is we have activity ratio, and type 4 we have is profitability ratio. The first two ratio they will ask you for 6 mark, and rest two ratios they will ask you for 12 mark. So there will be one 6 mark and one 12 mark question from this chapter, and as well as there will be one 1 mark question and 2 mark question from this chapter. So very important one among all this topic is quick ratio and current ratio. So before we start, we will just analyze. So under this chapter, the first type of ratio we have is liquidity ratio. Under liquidity ratio, we have two types of ratio. One is current ratio, the other one is quick ratio. So current ratio, they will ask you for 1 mark. Current ratio is also known as working capital ratio. Please remember, current ratio is also known as working capital ratio, or quick ratio is also known as acid test ratio. Okay, so guys, आज हम लोग जो है लिक्विडिटी रेशियो के बारे में स्टडी करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे. और लिक्विडिटी रेशियो के अंदर जो है टू टाइप्स ऑफ रेशियोज आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको फाइनल एग्जाम में डेफिनेटली आएगा. क्वेश्चन नंबर 30 पार्ट सी. ओके, सो इट विल बी ऑल द टाइम इन द क्वेश्चन पेपर. वो क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा जो करंट रेशियो और क्विक रेशियो का सवाल होगा. सो मैं इस वीडियो में आपके लिए तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कर रहा हूं, सो दैट इफ यू जस्ट स्टडी दिस, अगर आप ये एक वीडियो सीख ले, मतलब कंप्लीटली देख ले, तो आराम से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो. सो सो बिफोर वी स्टार्ट गाइस, इसमें करंट रेशो का दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशो. कंफ्यूज मत होना. अगर वो क्वेश्चन में पूछा वर्किंग कैपिटल रेशो, उसका मतलब है करंट रेशो. और नेक्स्ट जो है क्विक रेशो. सो क्विक रेशो इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशो. सो टू अंडरस्टैंड थरली, इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं और प्रॉब्लम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. सो हियर वी हैव इज, they have given the question, calculate current ratio and quick ratio from the following information. So आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और थोड़ा करंट असेट्स के बारे में और लाइबिलिटीज के बारे में देगा. फॉर्मेट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन वैसे भी आ सकता है, क्वेश्चन वैसे भी आ सकता है बैलेंस शीट के साथ, ऐसे भी आ सकता है और इस तरीके से भी पूछ सकता है. बैलेंस शीट भी दे सकता है, या नहीं तो आपको ट्रायल बैलेंस के थ्रू भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो हियर दे हैव गिवन यू स्टॉक दिया है, दे हैव गिवन डेटास, बिल्स रिसीवेबल, एडवांस टैक्स, कैश, क्रेडिटास, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट. तो अब हम इस पर्टिकुलर आइटम्स में से हम सेग्रीगेट करेंगे करंट असेट्स को सा है और करंट लाइबिलिटीज को सा है. फर्स्ट you need to segregate, yeah, you have to just separate the current assets and current liabilities. So here stock comes under current liability, current asset, CA, then datas, CA, bills receivable, CA, advance tax, CA, then cash and cash equivalent, this is also CA. Advance tax is actually a prepaid expense. So prepaid expense and outstanding income are assets. Okay, and vice versa, opposite is outstanding expenses and prepaid incomes are liabilities. Okay, so advance tax is an asset, cash and cash equivalent. So ये पूरे पांच जो है करंट असेट्स में आएंगे और ये तीन, बाकी तीन जो है करंट लाइबिलिटीज में आएंगे. नाउ ये प्रॉब्लम हो गया एनालिसिस. अब जब भी आप कोई भी रेशो वाला प्रॉब्लम करोगे, फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी रेशो का प्रॉब्लम आप करोगे, जहन में रखना उसका फॉर्मूला, फर्स्ट आप उसका फॉर्मूला लिखना,
उसके बाद एनालाइज करना कि आपको उस फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉर्मूला. सो हियर दे हैव गिवन अस क्विक सी आर इज इक्वल्स टू, आप देखो क्विक रेशो इज इक्वल्स टू करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज. सो फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट क्या है, करंट असेट्स चाहिए और करंट लाइबिलिटीज. अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपको आंसर मिलेगा. तो क्वेश्चन में करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज दिया है, हमने उसको सैग्रीगेट किया. पहला जो 5 है, फर्स्ट 5 इज करंट असेट एंड रेस्ट 3 आर करंट लाइबिलिटीज. सो अभी हम उसको टोटल करेंगे, देखेंगे कि करंट असेट कितना है एंड करंट लाइबिलिटीज कितना है. सो करंट असेट 40,000 हमने लिया, स्टॉक, डेटास, बिल्स रिसीवेबल, एडवांस टैक्स, कैश. 5 चीजों का जब आप सम अप करेंगे, आप टोटल करेंगे, आपको 1,45,000 आएगा. देन करंट लाइबिलिटीज हमने लिया है बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड वी हैव इज क्रेडिटर्स. सो आप 3 का सम अप करेंगे, टोटल करेंगे, यू विल गेट 63,000. देन आपको आपको अभी पता चल गया कि करंट असेट्स कितना है और करंट लाइबिलिटीज कितना है. तो चलो हम फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज द आंसर. सो करंट असेट वी हैव कैलकुलेटेड एज 1,45,000. सो हमने करंट असेट लिख दिया 1,40,000 पर 5,000. देन डिवाइडेड बाय 63,000. So current liability is 63,000 we have calculated. So write down this 1,45,000 divided by 63. So answer आपको मिलेगा 2.3. 2.30 is to 1. ये बेस हम always considered as 1. इस बेस को, करंट लाइबिलिटीज को हम ऑलवेज 1 कंसिडर करेंगे. तो इस टू 1 आप इधर मेंशन करें. इफ यू आर नॉट मेंशनिंग, अगर आपने मेंशन नहीं किया तो भी ये आंसर सही है, बट फिर भी आप रेशो में उसको डिस्प्ले करना है, प्रेजेंट करना है, तो यू हैव टू राइट 2.3:1. बेस हमेशा 1 रहेगा. देन आफ्टर दैट यू नीड टू फाइंड आउट द नेक्स्ट वन इज क्विक रेशो. सो क्विक रेशो मैंने आपको पहले भी बताया था इस वीडियो के शुरुआत में. आप रेशो एनालिसिस जब भी करोगे, फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. Don't forget to write the formula first, then you execute the problem. So quick assets divided by current liabilities. So as per the formula क्या पूछ रहा है, क्विक असेट चाहिए और करंट लाइबिलिटीज चाहिए. करंट लाइबिलिटीज हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, बट क्विक असेट क्या है पता नहीं है. और क्विक रेशो को एक और नाम है क्विक रेशो का, दैट इज नोन एज लिक्विड रेशो and it is also known as acid test ratio. 3 नाम है इस रेशो के, 3 नाम है, क्विक रेशो, लिक्विड रेशो एंड एसिड टेस्ट रेशो. डोंट फॉरगेट, कभी कभी वो मार्क्स द फॉलोइंग और 1 मार्क क्वेश्चन में डेफिनेटली पूछेगा क्विक रेशो, ऑपोजिट देगा लिक्विड रेशो या एसिड टेस्ट रेशो. आंसर इज एसिड टेस्ट रेशो. क्विक लिक्विड रेशो, क्विक रेशो एंड एसिड टेस्ट रेशो. सो नाउ क्विक असेट. सो क्विक असेट इज नथिंग बट करंट असेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस. ये 2 आइटम्स आप करंट असेट से निकाल देंगे, जो बाकी बैलेंस है, द रिमेनिंग बैलेंस इज नोन एज क्विक असेट. क्विक असेट इन द सेंस दोज असेट, जो असेट क्विकली वी कैन कन्वर्ट इनटू कैश. जो भी असेट है, जो भी असेट आइटम है जो हम इजीली उसको हार्ड कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्विक असेट. Any assets which can be easily converted into hard cash, that is known as quick asset. So here see, quick asset is equals to CA minus stock plus prepaid expenses. So अब यहाँ quick हमारा total current asset है 1,45,000 minus 40,000 stock है, inventory. Stock is also known as inventory. So stock plus prepaid expenses. Prepaid expenses एक है वो एडवांस टैक्स. ओके, सो 2 को ऐड करेंगे तो 48,000 होगा. 1,45,000 माइनस 48,000 इफ यू डू, यू आर गेटिंग 75,000. ओके, 97,000. सो नाउ आपको क्विक असेट का मालूम हो गया, और एज वेल एज यू गॉट टू नो व्हाट इज करंट लाइबिलिटीज. सो नाउ क्विक असेट इज
97,000 divided by current asset, current liabilities is 63,000. So now if you do interpretation, आप अगर इसको divide करेंगे तो आपको मिलेगा 1.53:1. ये बेस हमेशा 1 रहेगा एंड इसका आपको मिलेगा 1.5:3, या you can just write 1.5:1. The answer is 1.5:1. Hope you have understood this. हम एक और एग्जाम्पल लेंगे इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए. सो सी यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट, दिस इज प्रॉब्लम 2. ओके, सो कैलकुलेट क्विक करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो. सो इन्वेंट्री दिया है, ट्रेड रिसीवेबल दिया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है, ट्रेड पेएबल दिया है, करंट इन्वेस्टमेंट, प्रपोज डिविडेंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट. सो टोटली 1 2 3 4 5 6 7 असेट्स एंड लाइबिलिटीज दिया है. अब उसको आपको सॉर्ट आउट करना है, कौन सा करंट असेट है, कौन सा करंट लाइबिलिटी है. तो इन्वेंट्री करंट असेट में आएगा, ट्रेड रिसीवेबल करंट असेट्स में आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट असेट्स में आएगा, और ये करंट इन्वेस्टमेंट करंट असेट में आएगा, ये और ये करंट लाइबिलिटीज में आएगा. तो अब हम उसको ऐड करके विल फाइंड आउट व्हाट इज द आंसर. सो हियर इन्वेंट्री प्लस ट्रेड पेएबल प्लस कैश प्लस करंट इन्वेस्टमेंट. अब जब आप इस चार को ऐड करोगे आपको आंसर मिलेगा 2,40,000. सो योर करंट असेट्स विल बी 2,40,000 डिवाइडेड बाय 3,00,000. अगर आप इसको ऐड करोगे, ट्रेड पेएबल 2,34,000 है प्लस प्रपोज डिविडेंड 6,00,000 है. प्रपोज डिविडेंड कम्स अंडर करंट लाइबिलिटी. ओके, प्रपोज डिविडेंड इज outstanding expense. So the 2,34,000 plus 6,00,000 gives you 2,40,000 plus 60, 3,00,000. So here it is 3,00,000, here it is 1 2 3 and 4. If you add, you are getting 2,40,000. So 2,40,000 divided by 3,00,000 gives you 0.8:1. This will remain 1 all the time, and this is 0.8. So this is 0.8, this is 1. So your answer is 0.8:1. Remember, हमेशा ये ज़हन में रखना, first you need to write the formula. In short, CR, that is current ratio, is equals to CA divided by CL. CA divided by CL, that is nothing but current assets divided by current liabilities. So करंट असेट्स हमने कैलकुलेट किया, कौन सा करंट असेट है, इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड देन करंट इन्वेस्टमेंट. इन चारों को ऐड करने के बाद यू विल गेट 2,40,000 डिवाइडेड बाय, देन नेक्स्ट वी हैव इज करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेएबल, प्रपोज डिविडेंड, बीओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट. सो इन तीनों को ऐड करने से आपको 3,00,000 मिलेगा. So 2,40,000 divided by 3,00,000 gives you 0.8:1. Then next हम find out करेंगे quick ratio. So quick ratio in short, very short, QR is equals to, QR code नहीं, QR quick ratio या liquid ratio या acid test ratio is equals to quick assets divided by current liabilities. So मैंने बताया था quick asset is nothing but current asset minus stock plus prepaid expenses. So here quick assets is equals to 2,40,000 minus stock, and they have given as 2,40,000 minus 90,000. So here 90,000 they have given as trade receivables, 2,40,000 minus 1,20,000. Inventory is 1,20,000. So if you do 2,40,000 minus 1,20,000 plus any other thing is given, no, only one item is there, stock. When you minus, you will get as 2,20,000 answer. So 2,40,000 minus 2,20,000 gives you, again answer will be 2,20,000. So 2,20,000 divided by 3,00,000, the answer will be 2.5:1.
1. The answer will be 2.5:1 because एक ही आइटम है जो हम निकाल सकते हैं क्विक असेट फाइंड आउट करने के लिए, वो है इन्वेंट्री या स्टॉक. सो 2,40,000 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था करंट असेट माइनस स्टॉक 1,20,000 है. व्हेन यू माइनस दिस the answer what you get it is 1,20,000. So your quick asset is 1,20,000. Okay, so 1,20,000 divided by 3 lakh, you will get 2.5:1. Done? Okay, hope you have understood this. We will be doing one more type of problem, last problem, that is same. Again they have given calculate current ratio and quick ratio. Okay, so here sometimes they will give you the first problem in the trial balance, sometimes they will give you just particular amounts, some assets and liabilities will be given to you, sometimes they will give you problem. कभी कभी आपको प्रॉब्लम इस तरीके का प्रॉब्लम भी आ सकता है. ओके, सो बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस शीट में यहाँ पे लाइबिलिटीज दिया है और यहाँ पे असेट दिया है, और इसमें थोड़े नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं और करंट लाइबिलिटीज हैं. यहाँ पे थोड़ा फिक्स्ड असेट है और करंट असेट है. सो अब फर्स्ट हम सॉर्ट आउट कर लेंगे इसमें नॉन करंट लाइबिलिटीज कौन सा है. ये तीन जो है नॉन करंट लाइबिलिटीज है और यहाँ पे बिल्डिंग जो है फिक्स्ड असेट है. अभी बैलेंस जो है ये करंट लाइबिलिटीज है, ये करंट असेट्स है. सो हो गया, ऐसे सॉर्ट आउट करना है, बस ये इंफॉर्मेशन हम लेंगे और हम आंसर फाइंड आउट करेंगे. ओके गाइस, ये कभी कभी आपको 1 मार्क में भी पूछेगा. प्लीज याद रखना कि करंट लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड इनकम आएगा, और असेट में स्टॉक ऑल्सो नोन एज इन्वेंट्री, डेटाज आएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स आएगा, फिर आपके पास जो है कैश इन हैंड आएगा, और आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग इनकम्स आएगा. ओके, एग्जांपल ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस इज दिस वन. ओके, प्रीपेड सैलरी, एंड हियर outstanding outstanding expense is this one. Okay, so अभी इंफॉर्मेशन मिल गया. असेट्स और लाइबिलिटीज में से हमने करंट असेट निकाल लिया और करंट लाइबिलिटीज को निकाल लिया. 3 करंट लाइबिलिटीज हैं और 4 करंट असेट्स हैं. अब ये लेके हम लोग ना, ओके, सो हियर करंट रेशियो इज इक्वल्स टू, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ये करंट असेट इज इक्वल्स क्विक करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज. सो नाउ हम लोग करंट असेट्स कैलकुलेट करेंगे. टोटल स्टॉक, डेटास, कैश इन हैंड, प्रीपेड सैलरी. सो स्टॉक, कैश इन हैंड, they have given datas, cash in hand, and you have is prepaid salary. So जब आप इसको ऐड करोगे 4,50,000 आएगा. करंट लाइबिलिटीज आपका 3 है, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. इन तीनों को ऐड करने से 2,20,000 मिलेगा. सो आपको पता चल गया अभी करंट असेट कितना है और करंट लाइबिलिटीज कितना है. अब फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूले में फिगर्स लिख के we will find out what is the answer. So now here they have given us 2,40,000 divided by 2,20,000. You will get 2 point change. You will get 2.0 something. So you just write 2:1. This base will remain 1 and this is 2. Okay. So your answer is, your current ratio is 2:1. Okay guys. Then next we have is second, quick ratio is equals to quick asset divided by current liabilities. So current liabilities we already know, हमको पहले से ही पता है कि current liabilities 2,20,000 है, बट हमको फाइंड आउट करना है क्विक असेट्स कितना है. सो क्विक असेट इज इक्वल्स टू करंट असेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड सैलरी या प्रीपेड एक्सपेंसेस. सो 4,50,000 माइनस 1,10,000. 1,10,000 कहाँ से आया? स्टॉक का 1 लाख और प्रीपेड सैलरी का 10,000. सो दो को ऐड करेंगे आप तो आपको 1,10,000 होगा. सो 4,50,000 माइनस 1,10,000, आंसर आपको मिलेगा, क्विक assets आपको मिलेगा 3,40,000. Your quick assets will be 3,40,000. Okay guys,
now is equals to 3 lakh 40 divided by 2 lakh 20, you will get 1.5 is to 1. Clear, guys? Hope you have understood, hope you have enjoyed, and you hope you have learned this particular topic. It's a very easy topic. They will ask you for 6 mark. I'm telling you, I'm repeating you again. Under this chapter 10 called ratio analysis. Ratio analysis is also known as a tool of financial statement analysis. कभी कभी आपको वो 2 मार्क में क्वेश्चन आएगा, mention the tools of financial analysis. Under financial analysis, we have horizontal analysis known as comparative analysis. Common size analysis is also known as vertical analysis, ratio analysis, and cost plus profit analysis. So अभी यहाँ पे ratio analysis, that is chapter 10, उसमें 4 type of main ratios हैं. First, liquidity ratio, solvency ratio, profitability ratio, activity ratio. इन चारों में लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशो 6 मार्क के लिए आएगा, और प्रॉफिटेबिलिटी और एक्टिविटी रेशो आपको 12 मार्क के लिए आएगा. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. आपको 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन एक आएगा, एक 6 मार्क और एक 12 मार्क क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में डेफिनेटली आएगा. सो नाउ हम जिसकी बात कर रहे हैं, लाइक दैट इज लिक्विड रेशो. सो लिक्विड रेशो में 2 टाइप्स ऑफ रेशो है. आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा करंट रेशो एंड क्विक रेशो. कभी कभी प्रॉब्लम में दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट लिक्विडिटी रेशो. सो लिक्विडिटी रेशो में 2 रेशोज आएंगे, करंट रेशो एंड क्विक रेशो. करंट रेशो इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशो. क्विक रेशो इज ऑल्सो नोन एज लिक्विड रेशो, एसिड टेस्ट रेशो. याद रखो, 1 मार्क 2 मार्क में बहुत काम आएगा. तो हमने 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स किए हैं. Hope you have understood this. So if you are enjoying all my videos, if you are learning out of all my videos, I request like, share, comment and subscribe, and forward it to as many as student possible. The main agenda, a motto behind making all these videos is to help as many as students who are struggling for tuitions, as well as who are slow learners, who cannot learn in the crowd. Those students who have claustrophobia and learning in the crowd, for all those students, all my efforts are for all these students. So try to share and forward to as many as student possible. Thanks for watching. See you in the next video.